Namaste students and my dear friends. Today this video is prepared for the purpose of completely exam preparation. Especially this video is prepared for writer exam, which is the part of LibreOffice. But whatever I'm preparing this video, it is for exam purpose, but we cannot claim all the questions will come from this only. So just pay attention and do your preparation properly. But it is rapid revision of LibreOffice Writer. So let's come to the point. I'm showing you. So this is LibreOffice and introduction of this software. Also I opened this LibreOffice only, so you can understand this notes and that video or this learning properly, because here I am showing you as well as explaining. So in this LibreOffice Writer, this topmost bar, this is known as title bar, and this title bar having mainly, if any software, that title bar uses what to store or to display the name of current file as well as the name of the software. After that, below of this, it is menu bar. As you are seeing, these menus are there, different menus are there. So this is menu bar, and below of this one, it is standard toolbar. And after standard toolbar, this is formatting toolbar, and at the bottom most, this is known as status toolbar. Okay, now see, exam point of view, this introduction of this screen, it is very important. So in exam, maybe question like this: what is the name of the topmost bar of the LibreOffice Writer? Then you can say the name of this topmost bar is known as title bar, which contain current file name as well as software name, application name. So here it is untitled one, because I have not defined any file name, so it is giving untitled one. Suppose I am storing this as a particular name, then suppose I am storing this ABC or whatever it is there, then it will show you that file name here. Okay, like this. Now see, the file name is changed. Now file name is what? ABC and .dot. Dot is the extension name of this, and LibreOffice, it is the application where I am working. Okay, आफ्टर दैट सो मेन क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम, क्योंकि अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन क्वेश्चन ये है कि टाइटल बार के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दिखती है. तो एक तो जो एप्लीकेशन अभी खोल के रखी है उसका नाम, ठीक है, और जो फाइल अपना ने खोल के रखी है उसका नाम. जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम ABC है और जो एप्लीकेशन खोल रखी है उसका नाम है LibreOffice Writer. abc.dot उसका एक्सटेंशन है. उसके बाद जो नीचे आता है उसको मेनू बार. तो इनमें से मेनू बार में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. लाइक हियर ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल. दिस ऑल आर द ऑप्शंस ऑफ LibreOffice Writer. इसके बाद जो आती है स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सबको याद रखनी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इनके आइकन याद रह जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आइकन दे के और पूछा जा सकता है कि क्या नाम है इस आइकन का, रिकॉग्नाइज करके आप बताइए. तो वेरी फर्स्ट इट इज़ न्यू, देन ओपन, देन सेव, एंड देन एक्सपर्ट इन PDF, देन राइटर, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू. फिर है कट, कॉपी एंड पेस्ट, एंड दिस इज नॉन एज क्लोन. Read, undo and redo. Okay, and then find and spelling check. Okay, insert pictures, like that. There are number of icons, and this is standard toolbar
where bold, italic, underline, this is known as superscript, subscript, okay, and then font color, font background color, like that. And here important is what? It is alignment. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, तो ये अलाइनमेंट है, ठीक है। और ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट बता रहा है, और ये इंक्रीज इंडेंटेशन एंड डिक्रीज इंडेंटेशन। तो यहाँ पे तो ये सब फॉर्मेटिंग टूल बार के हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो ये अलाइनमेंट में से कुछ पूछा जा सकता है, एज वेल एज ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो जनरल है, और दिस फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज। तो ये सब जो फॉन्ट से या डेकोरेशन से जो रिलेटेड है वो सब फॉर्मेटिंग टूल बार में है, जो फॉर्मेटिंग में काम में आता है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ सम इम्पोर्टेंट आइकॉन्स ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, that is new, the options of standard toolbars are new, save, open, then export to PDF, print preview, cut, copy, paste and clone। ओके, क्लोन एक ऐसा है जो MS वर्ड के अंदर पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के नाम से था, और यहाँ पे क्लोन के नाम से है, ठीक है। और फिर ये है आपका स्पेलिंग चेक, एंड देन दिस इज नॉन एज फॉर व्हाट इज दिस व्यू, ओके। एंड देन इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेक्स्ट, ये सब भी इसी के अंदर है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स ध्यान में रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है वो न्यू, ओपन, सेव, एक्सपर्ट, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, रीडू एंड अनडू। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में दिला दूँ, क्योंकि शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है, और 100% 1-2 शॉर्टकट कीज तो होंगी एग्जाम में। तो ओपन डॉक्यूमेंट के, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो कंट्रोल N, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो कंट्रोल O, यदि सेव करना डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल S, ओके, और प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P, और यदि प्रिंट प्रीव्यू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस O, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O, कट के लिए कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V, और रीडू अंडू के लिए कंट्रोल Z, और रीडू के लिए कंट्रोल Y, ठीक है। साथ में स्पेलिंग चेक करना हो अपने को तो स्पेलिंग चेक के लिए है अपना F7, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास F7, और ये है फाइंड एंड रिप्लेस है, और ये क्या है, वो क्या कहते हैं अपन, स्पेलिंग चेक। फाइंड एंड रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल एंड H, ओके, एंड इसके लिए है स्पेलिंग के लिए F7, ठीक है। इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हो जिसके लिए F12 शॉर्टकट की है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाइपरलिंक, एक ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल K है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड टूल बार पे क्या है। अब कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये स्टैंडर्ड टूल बार, नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है, परंतु कुछ कॉमन दिस एलिमेंट are there in file as well as file menu as well as standard toolbar। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था स्टैंडर्ड टूलबार पे न्यू, यहाँ पे भी है, ओपन देखा था, यहाँ पे भी है, फिर सेव देखा था, यहाँ पे भी है, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखा था, यहाँ पे भी है, प्रिंट है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारे जो कॉमन कंपोनेंट हो गए जो कि स्टैंडर्ड टूल बार और फाइल मेनू बार में है, उसमें से है एक तो न्यू जिसको कंट्रोल N करेंगे, ओपन कंट्रोल O, ठीक है, सेव कंट्रोल S, ठीक है, फिर प्रिंट कंट्रोल P, और प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट एंड O। तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइल मेनू एज वेल एज स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो नहीं होगा, और बाकी के कुछ 3 ऑप्शंस देंगे वो कॉमन होंगे। देखो एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ आजकल जो एग्ज़ाम होती है वो ऑनलाइन होती है, इसलिए आपको केयर रखना है
कि टाइमिंग एक तो फिक्स होता है, उस हिसाब से आपको टाइमिंग का ख्याल रख के काम करना है। अब उसके बाद क्या है फॉर्मेटिंग टूल बार में। अब फॉर्मेटिंग में जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड लाइक मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, वो सब फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक तो ये फॉन्ट नेम है, ये फॉन्ट साइज है, ये कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ओके। और ये उसके ऊपर जो लिखा हुआ कंटेंट है उसके ऊपर लाइन घुमाना जैसे स्ट्राइक आउट। और ये एक इम्पॉर्टेंट है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी, सुपरस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल शिफ्ट पी एज वेल एज सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी है। ठीक है, ये हमारे काम में आते हैं। और ये है फॉर्मेटिंग क्लियर करना, ये एक नया ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें कंट्रोल एम फॉर क्लियर द फॉर्मेटिंग एंड दिस इज फॉर दिस फॉन्ट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो है, उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर 4 तरह के होते हैं। तो ये है लेफ्ट, ये सेंटर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, जो कि वर्ड के अंदर भी सेम है, इधर भी सेम है। कंट्रोल बी इटैलिक अंडरलाइन वो भी सेम है, खाली ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का याद रखना कंट्रोल शिफ्ट पी एंड सबस्क्रिप्ट का याद रखना कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, तो ये तो था आपका टूल बार जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक और टूल बार, एक और बार है जो कि स्टेटस बार है, जो कि बॉटम में आपको मिलेगी, किसी भी एप्लीकेशन के बॉटम में मिलेगी। यहाँ की जो स्टेटस बार है उसका यूज़ है कि इसमें टोटल कितने पेज हैं और करंटली कौन से पेज पे अपन काम कर रहे हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, ये सब हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? स्टेटस बार से। तो बॉटम मोस्ट बार ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज नोन एज स्टेटस बार, okay, which is having information like page number, total page number, current page number, total word, total character। ठीक है, इसको हम किसी और ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भाई इसमें कितने वर्ड हैं, तो उसके लिए है टूल ऑप्शन के अंदर काउंट, वर्ड काउंट, तो ये भी आपको सेम इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, परंतु इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो और कौन से टोटल कितने पेज हैं। तो ये तो था टूल बार का ओवरव्यू। और अब हम अपन चालू करते हैं मेनली जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, 2 स्लाइड्स। इसमें है लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ अ पावरफुल ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर डेवलप बाय द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है। ठीक है, तो अपने को ये लिखना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर। फिर ये पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनाया, किसने डेवलप किया, तो द डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन। तीसरा इसमें ओपन बन सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स को छोड़ देगा, खाली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारे वर्ड, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, वर्ड स्टार, फिर डॉक जो कि अपना डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए काम में आता है इंटरनेट पे, ठीक है, तो गूगल डॉक। तो ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, किसी एक नाम को तो डाल सकता है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पहली लाइन के अंदर बनते हैं कि वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जो दूसरी लाइन में दिया हुआ है, सर्व एज फ्री अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि पहले भी कभी एक बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ में लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जगह पे वर्ड कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है। और दूसरा उल्टा पूछा जा सकता है कि वर्ड MS वर्ड की जगह पे लिब्रे ऑफिस के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको राइटर का ध्यान रखना है।
अब एक और है इम्पोर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जिसमें कि विंडोज़ एक्सपी जो कि बहुत पुराना वर्जन है उसमें यूज़ करना हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, जबकि लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, जेएनयू, इसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा यहाँ पे, जो टॉप में देखो तो आप देखा था आप लोगों ने कि एक्सटेंशन ओडीटी, तो वही एक्सटेंशन ओडीटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन है DOCX। ठीक है, 2007 के पहले जो MS ऑफिस के जो चलते थे उसमें DOC चलता था, परंतु अभी लेटेस्ट वर्जन में DOCX चलता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर है उस सूट के अंदर, मतलब ये पूरे ग्रुप के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल है। जैसे MS ऑफिस में आपको मैं बता दूं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एंड MS एक्सेस शामिल है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि MS वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इक्वलेंट काम करता है, कैल्क जो कि एक्सेल के जैसा काम करता है, इम्प्रेस जो कि पावर पॉइंट के जैसा काम करता है, और बेस जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर MS एक्सेस के जैसा काम करता है। जो MS एक्सेस होता है MS ऑफिस में, उसकी जगह पे यहाँ पे बेस काम करता है। ठीक है, तो ये आपके हैं। और लास्ट वाला भी हमने पहले पढ़ लिया है कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इसका क्या है, तो अनटाइटल है, जो कि यहाँ पे आ रहा था, हमने सेव किया तब जाके ये अपना नाम इसने जो जिस नाम से सेव किया उसके बारे में बता। ये टूल बार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि टाइटल बार, ये जो ऊपर के बार है उसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद ये सब मेनू बार है, उसके बाद आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, और बॉटम में जो है उसको स्टेटस टूल बार बोलते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ कंपोनेंट जो याद रखने हैं, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है आपका न्यू, सेव, प्रिंट, PDF export, as well as table insert, image insert, chart insert, text insert, and spelling check, spelling check, as well as एक और आपको बताया था फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आपको पूछा जा सकता है। फॉर्मेटिंग टूल बार पे फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड अलाइनमेंट। ठीक है, और ऑर्डर, अनऑर्डर एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर था फॉर्मेटिंग टूल बार के, तो ये याद रखना है। अब फॉर्मेटिंग मेनू और एडिट मेनू उसके अलग। अब हमने फाइल मेनू तो पढ़ा था, उसी की तरह एडिट मेनू के जो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अपने यहाँ पे टूल बार में है, जैसे कि अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो ऑप्शंस है वो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। तो ये एडिटिंग में कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये फॉर्मेटिंग टूल बार का ऑप्शन है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो अंडू, रीडू, कंट्रोल Z, जैसा कि आपने पढ़ा था, रीडू, कंट्रोल Y। ठीक है, फिर सेलेक्ट ऑल, ये कई बार पूछा जाता है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A। ठीक है, कट के लिए कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V, और सॉरी फाइंड करना हो तो कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल H, एंड पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाना हो तो कंट्रोल G है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, पर ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें से शॉर्टकट कीज वगैरह आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में बता दिया, एडिटिंग मेनू,
के बारे में अभी अपनों ने बात की। इसमें ये आपको शॉर्टकट की भी दिख रही है, साथ में शॉर्टकट के दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको शॉर्टकट कीज याद रहे, क्योंकि शॉर्टकट कीज कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टकट की पे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। व्यू मेनू मतलब ये वाला, और इसके अंदर भी जो मेजरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसी भी टूल बार को ऑन करना हो तो कहाँ से करेंगे, तो आपको लिखना है, आपको बताना है कि व्यू और फिर टूल बार, और फिर जो भी टूल बार आपको ऑन करनी है उसको यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। स्टेटस बार हाइड करनी हो तो ये कर दोगे तो ये स्टेटस बार चली गई, आप जैसा कि देख रहे हैं अभी स्टेटस बार गायब हो गई, और मैं यहाँ से कर देता हूँ तो ये स्टेटस बार वापस आ गई। ठीक है, उसी तरह से आपके व्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो नॉर्मल व्यू, वेब व्यू एंड पेज लेआउट व्यू। ये और पेज लेआउट व्यू के अंदर सिंगल एंड मल्टीपल, बुक व्यू, इस तरह से अलग अलग व्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी याद रखने की है। और उसके बाद आपका आता है व्यू, एक ऑप्शन है, उसके अंदर अपने ये देख लिया। उसके बाद आता है टूल मेनू। इस पे टूल मेनू पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि एक आध कोई क्वेश्चन तो ज़रूर होगा। टूल मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि स्पेलिंग चेक, जिसको जैसा कि अपने बोला था F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक कराना हो तो शिफ्ट प्लस F7, थिसरस चेक करना हो तो कंट्रोल प्लस F7। तो ये तीनों F7 में कंफ्यूजन हो सकता है, और कई बार शिफ्ट की और कंट्रोल की के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्पेलिंग चेक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक है तो शिफ्ट, और यदि थिसरस चेक करना है तो कंट्रोल के साथ F7 है, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है तो शिफ्ट के साथ F7 है, और सिंपल स्पेलिंग चेक करना है तो F7 काम में लेंगे। उसके बाद इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, वर्ड काउंट वाला भी इधर ही है। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट ये बता दिया, मेल मर्ज विजार्ड भी यहीं से ओपन होता है, और स्लाइड बार वो भी यहीं से है। तो ये आपको याद रखना है, टूल बार्स के अंदर ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जो लगता है टूल बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा एडिट टूल बार और फाइल और मेनू बार, इनसे पूछे जा सकता है। कभी कभार क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि इंसर्ट आपने यहाँ पे देखा था स्टैंडर्ड टूल बार पे, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, वो सब इसके अंदर भी अवेलेबल है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, मीडिया, इमेज, ओके, ये सब अवेलेबल है। तो फिर से मैं याद दिला दूं कि इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, ऐसे तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, परंतु मुझे जो लगता है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू और इधर से टूल मेनू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका टूल बार के बारे में। तो आज के लिए इस के लिए इतना। एक और अपन कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। तो एक और है आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेटिंग, जो कि आपका क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं इसको फास्ट कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन कर देंगे। तो अलाइनमेंट के बारे में जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं। तो कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल R राइट एंड कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। ठीक है, तो ये आपको अलाइनमेंट याद रखना है। पेज ओरिएंटेशन इसमें 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन, वर्ड के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, इधर भी 2 तरह के होते हैं। बाय डिफॉल्ट, ये एक इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो लेफ्ट साइड। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज का क्या होगा, तो पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होगी, तो 1। बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या होगा, तो भी वो 1 आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट लाइन इस पे जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वजह से है कि लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और मैक्सिमम मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। तो फॉन्ट साइज
जो मैनुअल फॉन्ट साइज है, जिसको कस्टम फॉन्ट साइज है, वो मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 999 हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जबकि जो मेनू बार से यहाँ से अपन जो करते हैं वो मिनिमम 6 हो सकती है और मैक्सिमम 96 तक हो सकती है। जबकि हम मान लो मैनुअल करें, मैनुअल का मतलब ये हम अपने यहाँ से टाइप कर दें तो ये 2 हो सकती है, मैनुअल करें तो ये 2 हो सकती है और मैक्सिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 999 तक हो सकती है। तो ड्रॉप डाउन मेनू से सेट करेंगे तो 6 एंड 96, 6 इज मिनिमम, 96 इज मैक्सिमम। कस्टम या मैनुअल कोई पूछे तो फॉन्ट साइज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 99.99 हो सकती है। इसमें भी बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो 12 का होता है और जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है उसका नाम जो है वो लिबरेशन सैरिफ होता है। अब एक और है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन कहते हैं किसको है, तो ये देखो यहाँ पे 3 तरह के इंडेंटेशन है। ये है आपका लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। इस तरह से 3 तरह के इंडेंटेशन हो सकते हैं। तो इंडेंटेशन कहते हैं किसको, स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड पैराग्राफ, दैट इज वी कैन सेट विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। अब फॉर्मेट ये भी अपनों ने पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन। बोल्ड, कंट्रोल बी, इटैलिक आई, कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन ये एक नया है, डबल अंडरलाइन कंट्रोल डी। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का एंडिंग वाला जो है, एंडिंग वाला करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा और स्टार्टिंग वाला करेंगे तो डिक्रीज करेगा। जैसा कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड बी फॉर सबस्क्रिप्ट। तो आशा रखता हूं कि आपके प्रिपरेशन के लिए थोड़ा वीडियो तो लंबा बन गया है, परंतु फिर भी इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट कवर किए हैं। और पहले के कंपैरेटिवली अभी मैंने क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज़ किया है तो लोगों को समझने में हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच, होप इट विल सपोर्ट यू। थैंक यू।